model how well items are represent the construct, ki whether that tool is appropriate for the SAM or not. So confirmatory factor analysis is required before applying the SAM. तो सैम को अप्लाई करने से पहले हमें कंफर्मेटरी जो कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस वो देखना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा क्या ये मॉडल आपका सैम के लिए फिट है या नहीं. तो वी हैव टू बी अप्लाई द सीएफए बिफोर द सैम. तो नाउ कॉन्सेप्चुअल मॉडल हमारा क्या बनेगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, then customer trust, customer loyalty. If the customer has the trust, automatically the loyalty will create. Once the loyalty will be create, the customer lifetime value will be increased. So that will be the conceptual or hypothesized model, conceptual model of the study. So it implies that satisfaction positively influence the trust, trust positively influence the loyalty, and loyalty positively influence the CLV, customer lifetime value. So in that you can say we have the four construct. First is the customer satisfaction, and we have the three statement here. We have the three statement related to customer satisfaction. So that is the measurement scale we have taken. So you can just cite into the methodology from where you have taken these scale measurement scale of the questionnaire. These three statements related to the customer satisfaction, then customer trust. These three statements related to the customer trust. So we can define all the values in the short form in the SPSS. You can define, you can put the value like CS1, CS2, and CS3. You can given the variable name like that. And in the label, you can just put the full statement like that. I am satisfied with the product quality like that. So in the label, you can put the full statement, but in the variable name, you have to given the short name. So that is easy to fit in the all the diagrams, and it will not take the more space. The customer trust, the next variable construct is the customer loyalty, the three statement related to the customer loyalty. So we have just denoted the name here like CL1, CL2, CL3. Then the customer lifetime value, CLV1, CLV2, and CLV3. So each indicator CLV, CS1 to CLV3. So E is measured on the 5-point Likert scale, where 1 is defined and 1 is denoted for the strongly disagree, 5 for the strongly agree. So in that first step, we will apply the confirmatory factor analysis CFA. So that will validate and make the data reliability. Whether this measurement model is fit or reliable or valid or not. That's why we have to apply the CFA before applying the SAM. So in AMOS, so the SAM is processable, and we can just analyze the SAM by using the AMOS SPSS. So in that we will open the AMOS, then create a path diagram to create the four latent variables. So in that we will create the four latent variable. Means as circle में हम variable ऐसे बना लेंगे circle में, और वहाँ पे हम four latent variable बना लेंगे. कौन कौन से हैं? Customer satisfaction, customer trust, customer loyalty, and customer lifetime cycle. So these are the four latent variables. So under these, all the four variables have the three statements. सभी के पास थ्री स्टेटमेंट है, हमने सभी को डिनोट कर रखा है, हमने उनको एक शॉर्ट नेम दे रखा है. कस्टमर सेटिस्फेक्शन रिलेटेड जितनी भी स्टेटमेंट है उसको हमने CS1, CS2, CS3 दे दिया. तो ये लेटेंट वेरिएबल के अंडर हम थ्री जो स्टेटमेंट्स है वो रेक्टेंगल जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ये जो स्टेटमेंट है ये आगे ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स, और ये आगे लेटेंट वेरिएबल जो पूरा जो कंप्लीट जो वेरिएबल है वो, और वेरिएबल के अंडर जितनी स्टेटमेंट है ये वो हमारे होते हैं ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स, जिनको रेक्टेंगल शेप में हम डालते हैं. और जो ये है फोर लेटेंट वेरिएबल्स हैं इसको हम सर्कल में डालते हैं. तो ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल टू ईच लेटेंट वेरिएबल जो सर्कल में इनके साथ सारे ये कनेक्ट होंगे आपस में एरो के साथ. फिर आपस में जितनी भी जो लेटेंट कंस्ट्रक्ट है हमारे उनको डबल हेडेड एरो के साथ हम उसमें कनेक्टेड करेंगे. तो ये इतना लेट लेट ज्वाइन करते रहते हैं.
मैं दिखाता हूँ, अगर मेरे पास वो पड़ा होगा तो वो SPS, लेकिन अमोस अभी मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, वो फाइल ओपन नहीं होगी। आई एम ट्राइंग, 1 मिनट। ये विजिबल है? यस सर। तो ये एक मेरा रिसर्च पेपर था, इसमें मैंने ग्रीन जो है ग्रीन रिक्रूटमेंट या ग्रीन HRM पे जो मैंने पेपर लिखा था, तो इसमें जो ग्रीन सिलेक्शन है इसको मैंने GRS से डिनोट कर दिया, फिर जो ग्रीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है GT-D से नाम से डिनोट कर दिया मैंने, ग्रीन इंगेजमेंट है एम्प्लॉय इंगेजमेंट, इसको GEI से डिनोट कर दिया, फिर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। तो ग्रीन सिलेक्शन, ग्रीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ग्रीन एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ग्रीन जो था ये सी से हमने क्या किया था, एक वेरिएबल और था, और ये है अप्रेजल, GRM में अप्रेजल था। तो ऑल these are we have to check the impact of all these on the organization performance, org डैश करके p हमने कर रखा है। तो ये जो हो गई, ये तो हमारे हो गए लेटेंट वेरिएबल, GRS हो गया, GTD हो गया, ये हो गया हमारे लेटेंट वेरिएबल्स। और ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल, इसके अंदर GRS के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास थ्री स्टेटमेंट है, GRS5, GRS6, GRS7, ये हमारे पास 3 जो स्टेटमेंट, ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल होगा। फिर इनका आपस में कोवेरियंस हम कनेक्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे कोवेरियंस जो कनेक्ट कर रखा है, ये देखो GRS और GRC के बीच में ये हमने डबल एरो के साथ कर रखा है, जिसकी वैल्यू हमने ये 0.31 आ रही है। तो ऐसे कोवेरियंस आपस में हर एक जो लेटेंट वेरिएबल को कनेक्ट करना है आपको। इस तरह से हमने GTD के बीच में और जो ग्रीन परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल के बीच में हमने कर रखा है कनेक्ट। ये एरो दिख रही है, डबल एरो, डबल हेडेड एरो दिख रही है आपको, ये कोवेरियंस जो है दो डबल हेडेड एरो होती है, तो आपस में जो लेटेंट वेरिएबल के बीच में कनेक्ट करती हैं। तो इसी तरह जिनके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है उसका एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में हमने शॉर्ट फॉर्म में ये सारी स्टेटमेंट हमने लिख रखी है इसमें। तो इस तरह से आप इनको ड्रॉ करोगे, वो इसमें अमोस्ट के अंदर ड्रॉ का ऑप्शन आ जाएगा, बट उसके लिए SPSS फाइल भी होनी चाहिए आपको, वो भी जरूरी है। ठीक है, तो उसके बाद हम कोवेरियंस आपस में डबल एरो मैंने बताई थी, डबल हेडेड एरो, उसमें कोवेरियंस क्रिएट करेंगे और कैलकुलेट द एस्टिमेट पे क्लिक करेंगे, फिर आउटपुट आएगा इसमें। तो इसमें हमें कुछ ध्यान रखना है, जो CFA आउटपुट आएगी एक रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आएगी, तो उसमें जो फैक्टर जो लोडिंग है उसमें हर एक आइटम की जो फैक्टर लोडिंग जितनी भी स्टेटमेंट है उनकी लोडिंग है, दैट शुड बी मोर देन द 0.7। ये थ्रेशोल्ड है, 0.7 से अबव होनी चाहिए फैक्टर लोडिंग हर एक आइटम की। क्रोनबेक अल्फा है 0.70 से अबव होना चाहिए फॉर इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। देन कंपोजिट रिलायबिलिटी जो CR है, दैट शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 0.70, that shows the constructor reliability, and the average variable extracted AV, that is shows the convergent validity, so that should be more than the 0.5। अगर 0.5 से कम आ गई तो कुछ ना कुछ गड़बड़, we cannot proceed for the same। तो ये that is the threshold, ये सारी की सारी थ्रेशोल्ड। डिटरमिनेंट वैलिडिटी क्या शो करती है, जो आपकी एवरेज जो वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड निकल के आएगा, that should be greater than the R square।
बिटवीन द कंस्ट्रक्ट, उनके बीच में जो आर स्क्वायर, आर क्या होता है कोरिलेशन, कोरिलेशन का स्क्वायर कर देंगे वो क्या बन जाएगा डिटरमिनेंट बन जाएगा. तो दैट शुड बी the AV must be greater than the R square between the construct. So these are the some threshold. So your reliability and validity defined through these from these the factor loading, Cronbach alpha, CR, AV. तो आपको ये सबसे पहले देखना है क्या इसके अकॉर्डिंग हमारे सारे रिजल्ट्स हैं. अगर फिट बैठता है आपका जो मॉडल इन सब रिलायबिलिटी वैलिडिटी के अकॉर्डिंग, देन यू कैन प्रोसीड. फिर जो नेक्स्ट आएगा वो आपका आएगा जो मॉडल फिट. ये शो करेगा आपका क्या ये मॉडल फिट है या नहीं आपके उसके लिए, आपके टेस्ट के लिए, सैम के लिए. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट शुड बी लेस देन 3 से कम वैल्यू होनी चाहिए. जो गुडनेस ऑफ फिट इंडेक्स जो इंडिसेस है या इंडेक्स है दैट शुड बी ग्रेटर देन द 0.90, 0.9 से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है. तो AGFI है जो एवरेज गुडनेस ऑफ फिट इंडेक्स है वो आपका भी वो 0.90 से अबव होना चाहिए, जिसको हम एडजस्टेड मॉडल फिट भी बोलते हैं. CFI है कंपैरेटिव फिट इंडेक्स, CFI शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 0.90. TLI जो टुकर लेविस इंडेक्स जो हम निकालेंगे जिसमें उसका भी वैल्यू 0.90 से अबव होनी चाहिए, उसको हम गुड मॉडल मानते हैं कि मॉडल फिट है. फिर जो मेन है ये है रूट मीन स्क्वायर एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन, जिसको RMSEA बोलते हैं. तो दैट वैल्यू शुड बी लेस देन 0.08, तो वो एक्सेप्टेबल फिट होगा. अगर 0.08 से कम वैल्यू आएगी तो दैट मॉडल नॉट फिट फॉर द स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडल. देन SRMR ये है स्टैंडर्डाइज्ड रूट मीन स्क्वायर रेजिडुअल, that should also be less than 0.08. अगर 0.08 से कम है that is in the under the acceptable fit. So ये दो चीजें आपको डिफाइन करेंगी, एक तो वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी या दूसरा मॉडल फिट. ये दोनों चीज डिसाइड करेंगी कि आप सैम लगा सकते हो या नहीं आपके डाटा के ऊपर. अगर ये थ्रेशोल्ड से के अकॉर्डिंग नहीं है या उससे बाहर है, उस लिमिट से बाहर है, then you cannot go for the SAM analysis. अब देखो हमने जब लगाया जो कैलकुलेट किया तो इसमें आप देख सकते हो जो वैल्यू है हमारी CS1 की हर एक आइटम की जो वैल्यू है 0.81 है, 0.76 है, 0.84 है. ठीक है. और स्टैंडर्डाइज लोडिंग है इसकी 0.67 है. तो उसमें स्टार्टिंग में हमने क्या किया था कि जो हर एक आइटम का है जो किससे ज्यादा होना चाहिए, हर एक जो आइटम है द फैक्टर लोडिंग है ईच आइटम शुड बी ग्रेटर देन 0.70. तो हमारा सारा का सारा 0.70 से आ रहा है, इसमें भी 0.70 से सारी वैल्यू अब आ रही है. ठीक है. और जो हमारा स्टैंडर्डाइज लोडिंग है वो हमारी स्टैंडर्डाइज लोडिंग है वो भी कितनी होनी चाहिए, देखो मैंने ऊपर बताई थी जो आपकी स्टैंडर्डाइज लोडिंग तो कंपोजिट ये दिखा रहा है सबको मिला के एवरेज दिखा रहा है. तो मेन हमें देखना आइटम की जो लोडिंग है वो दैट शुड बी 0.70 से अबव होनी चाहिए. और जो एवरेज जो एवी ही हमारा जो वो भी हमने देखा था एवी कितना होना चाहिए, जो एवरेज एक्सट्रैक्टेड वेरिएंस है दैट शुड बी मोर देन द 0.50. तो हमारा कितना आ रहा है ये भी ग्रेटर देन द 50, ये भी ग्रेटर देन 0.50. तो ये सारे के सारे ग्रेटर देन 0.50 आ रहा है. So you can say that is the reliability and the model is the fit for the SAM analysis. तो अब फिट आ रहा है तो इसमें ऑल फैक्टर लोडिंग 0.70 से, जो एवरेज जो एवी हमारी वो भी 0.5 से अबव है, और जो कंपोजिट रिलायबिलिटी है वो भी हमारी 0.70 से जो बड़ी है या ग्रेटर है. तो ये मेजरमेंट मॉडल इज वैलिड एंड रिलायबल, ये वैलिड है एंड रिलायबल है, यू कैन गो फॉर दैट. CR की वैल्यू हमारी यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे डली नहीं, चलो वो रह गई होंगी. कंपोजिट रिलायबिलिटी की यहाँ भी वैल्यू आती. सो ये सारा करने के बाद हम कंक्लूड करेंगे कि हाँ ये सारा मॉडल ये सारी डाटा है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द ऑल द थ्रेशोल्ड एंड दिस मॉडल एंड द डाटा इज फिट फॉर दैट SAM एनालिसिस. तो मॉडल इज द फिट फॉर द SAM.
इन सेकंड स्टेप में देन यू कैन डू द स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडल. ऑब्जेक्टिव क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस वेरिएबल्स. जो हमने जितने भी वेरिएबल लिए थे कौन कौन से लिए थे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उसका हम कस्टमर ट्रस्ट पे देख रहे हैं इम्पैक्ट, और कस्टमर ट्रस्ट का कस्टमर लॉयल्टी पे देख रहे हैं, कस्टमर लॉयल्टी का इम्पैक्ट हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू पे देख रहे हैं. तो हम कैसे कर सकते हैं? सेटिस्फेक्शन का हम लॉयल्टी पे देख रहे हैं, एंड कस्टमर जो ट्रस्ट है दैट विल प्लेज ए मीडिएटिंग रोल. इम्पैक्ट द ट्रस्ट इज मीडिएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सेटिस्फेक्शन एंड द लॉयल्टी. ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा. इसका हाइपोथेसिस क्या बना सकते हैं हम कि ट्रस्ट सिग्निफिकेंटली मीडिएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी. ये हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं इसकी. इसी तरह इसका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ द टू मेजर द मीडिएटिंग इम्पैक्ट ये मीडिएटिंग इफेक्ट ऑफ द लॉयल्टी बिटवीन द ट्रस्ट एंड द सीएलवी. ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा. हाइपोथेसिस क्या बना सकते हैं इसकी कि द लॉयल्टी देयर इज moderating impact of the loyalty loyalty has a significant relationship or mediating the relationship between the trust and loyalty significantly mediating the relationship between the trust and the CLV. तो इस तरह से हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं. तो हमारी ये 3 हाइपोथेसिस बन जाएंगी. कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर ट्रस्ट में बना सकते हो डायरेक्ट, और आपस में मीडिएटिंग करके भी आप इसकी रिलेशनशिप बना सकते हो. फिर कस्टमर ट्रस्ट का आप लॉयल्टी के साथ दूसरी हाइपोथेसिस बना सकते हो, और तीसरी आप ट्रस्ट और लॉयल्टी के बीच में आप बना सकते हो लॉयल्टी ना कस्टमर लॉयल्टी और सीएलवी के बीच में. तो इस तरह हाइपोथेसिस आपकी ये बन जाएंगी. रिलेशनशिप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो. एक्सपेक्टेड साइन क्या है? हमारा पॉजिटिव है कि हम पॉजिटिव देखें. देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड द कस्टमर ट्रस्ट. देयर इज ए पॉजिटिव impact or the relationship between customer trust and the customer loyalty. There is positive and significant impact of the customer loyalty and the customer lifetime value. तो हमने मॉडल फिट इंडस्ट्रीज निकाली सैम की. ठीक है, तो हम मॉडल फिट इंडस्ट्रीज इंडिसेस देखेंगे इसकी क्या थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग है सारी की सारी. तो हमारा थ्रेशोल्ड क्या था? लेस देन 3. तो वैल्यू हमारी क्या आई? 1.95. तो ये भी हमारा जो इंडस्ट्रीज फिट है मॉडल के लिए. CFI थी हमारा वो दैट शुड बी ग्रेटर देन 0.90. हमारा 0.94 आया, तो दैट इज आल्सो फिट. TLI थी वो भी हमारी 0.90 से अबोव होनी चाहिए, तो हमारी वैल्यूज आई 0.92. तो ये भी फिट है. और जो रूट मीन स्क्वायर था वो हमारा लेस देन 0.08 से कम होना चाहिए, तो हमारी 0.05 वैल्यू आई है, दैट इज आल्सो फिट. फिर हमारा जो SRMR है दैट शुड आल्सो बी लेस देन 0.08. तो उसकी वैल्यू भी हमारी 0.06 आई. तो ये सारा हम देख के हम कंक्लूड सारी वैल्यूज को हम कंसीडर करके हम करेंगे कि ऑल इंडस्ट्री इंडिकेट दैट द मॉडल इज फिट एंड एक्सेप्टेड फॉर द सैम. तो फिर नेक्स्ट में जो निकल के आएगा सैम में जो लगाएंगे, तो हमारा एक पाथ कोएफिशिएंट निकल के आएगा जो बीटा निकल के आएगा. तो हर एक की वैल्यू देखो बीटा की हमारी 0.65 है, इसकी 0.58 है, इसकी 0.6 जो 2 है, तीनों हाइपोथेसिस की. और सभी में देखो सिग्निफिकेंट रिजल्ट है. तो देयर इज सिग्निफिकेंट relationship between the both, and there is significant impact of satisfaction on the trust, and significant impact of the trust on the loyalty, and significant impact of loyalty on the customer lifetime value. तो सारे के सारे ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि वैल्यू है, पी वैल्यू है दैट इज लेस देन 0.05. तो ऑल द हाइपोथेसिस आर सपोर्टेड, तो रिलेशनशिप आर सिग्निफिकेंट. तो ये तो हमारे डायरेक्ट रिलेशनशिप हमने निकाली. ठीक है, ये हमने डायरेक्ट रिलेशनशिप. फिर हमने मीडिएटिंग में अभी थोड़ी देर पहले बताया था. मीडिएटिंग अगर एज ए मीडिएटिंग हम इसको हम मान के चलो तो कैसे कैलकुलेट करोगे. अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया कि मीडिएटिंग एनालिसिस है, ऑप्शनल है, ये कर सकते हो, लगाना चाहो तो लगा सकते हो. हम इनडायरेक्ट इफेक्ट देखते हैं इसमें. जैसे सेटिस्फेक्शन का इम्पैक्ट हम देखते हैं सीएलवी पे. मीडिएटिंग कौन सा होगा? ट्रस्ट और लॉयल्टी. हमारे पास ये मीडिएटिंग दो वेरिएबल हो गए, मीडिएटिंग हो गया. तो इफ इनडायरेक्ट इफेक्ट आर सिग्निफिकेंट यूजिंग द बूटस्ट्रैपिंग, हम बूटस्ट्रैपिंग को यूज करेंगे. वहां पे 5000 सैंपल हम पुट कर देंगे जहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ना वहाँ पे सैम को. तो वहाँ पे बूटस्ट्रैपिंग का ऑप्शन होता है, वहाँ पे हम 5000 सेट करेंगे. वैसे डिफॉल्ट होता है 5000, उसको
वो भी कर सकते, या चेंज कर सकते तो कर सकते थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट 5000 एक स्टैंडर्ड होता है, बूटस्ट्रैपिंग लेके चल सकते। तो इट कन्फर्म द पार्शियल और फुल मीडिएशंस। तो ये हम इस तरह से लगाएंगे। हम इसको एक बार इसको मीडिएटिंग मान के चलते हैं, एक बार इसको, या दोनों को इकट्ठा लेके भी कर सकते हो, या 1 by 1 कर सकते हो कि रिलेशनशिप चेक करनी है अब सेटिस्फैक्शन एंड सीएलवी के बीच में। मीडिएटिंग रिलेशनशिप कौन होगी, मीडिएटिंग वेरिएबल कौन हो गया, ट्रस्ट। सो ट्रस्ट इज मीडिएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सेटिस्फैक्शन एंड सीएलवी। देन दूसरी हाइपोथेसिस में आ जाएगा लॉयल्टी मीडिएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सेटिस्फैक्शन एंड द सीएलवी। ठीक है, तो ये आपको थ्रेशोल्ड फॉलो करने हैं, मैंने बताया था, दैट शुड बी फॉलोड। तो इसके अंदर जब भी आप ये बीटा निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, तो एक पाथ जो एनालिसिस है, पाथ का एक आपका डायग्राम बन के आएगा उसमें, सैम में, पाथ एनालिसिस में। वो कैसे बनेगा, इस तरह से एक आपका पाथ बनेगा। तो इसमें सारी बीटा वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है कि हर लाइन पे 0.20, 0.12 है, 0.01 है। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे दिखा रखी है, बीटा की वैल्यू कितनी है। और आपस में कोवेरियंस है, सारे वेरिएबल्स इनकी सबकी वैल्यू भी दिखा रखी है। बीच में इन आपस में कोवेरियंस है, उनकी वैल्यू क्या है, कोवेरियंस हर एक वेरिएबल्स का, लेटेंट वेरिएबल के बीच में डबल हेडेड एरो के साथ हमने कोवेरियंस दिखा रखा है। तो ये हमारा पाथ मोड है, पाथ एनालिसिस है, पाथ मॉडल है। तो ये देख लो, इसमें है ये ग्रीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बीच में MGRS है, और इसका इम्पैक्ट देखना है हमने ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के ऊपर के बीच में जो बीटा वैल्यू आ रही है 0.20 आ रही है यहाँ पे वैल्यूज। तो इस तरह से एक पाथ मॉडल निकल के आएगा उस टेबल के साथ साथ, जो मैंने अभी टेबल दिखाई थी उसके नीचे। तो ये बना सकते हो, और उसमें मेजरमेंट मॉडल में आप ये दिखा सकते हो, और बीटा वैल्यू यहाँ से आ जाएगी सबकी। तो like that you can just apply the AMOS, you can apply the SAM in the AMOS. एक प्लीज मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये टाइम पे ज्वाइन किया करो, बाद में बहुत डिस्टर्बेंस होती है बीच बीच में। मैं 5-7 मिनट वेट करता हूँ ताकि जितने आ जाए उनको मैं ज्वाइन कर लूँ, एडमिट कर लूँ। पर फिर बीच बीच में जो एडमिशन की रिक्वेस्ट आती रहती हैं, ये पूरे लेक्चर को डिस्टर्ब करती हैं। तो आगे से मैं 5-7 मिनट पहले ऑलरेडी दे देता हूँ मैं सबको। चलो एडमिट हो जाओ जितने भी हैं, कई बार 10 मिनट भी दे देता हूँ, उसके बाद भी बीच बीच में आते रहते हैं। तो ये दिस नॉट द राइट वे। तो कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस का हमने थोड़ा सा आज किया था। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, और CFA लगा सकते हो वो सैम से पहले। Okay, thank you so much. Now you can leave.
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.